Hello, everyone. This is Amna Mir, your host. I warmly welcome you all in this session on advanced React.js concepts organized by 10Pearls University. A little introduction about me. So I am a tech evangelist and currently I am working in community outreach and partnerships team at 10Pearls. As you all know, 10Pearls is an award-winning digital development company. We imagine and build technology for the future through partnerships and a culture of innovation. 10Pearls believes in enabling others, and the best way for that is by teaching everyone. So for that, we have different projects, and one of them is 10Pearls University. Our vision is to keep everyone aware of technical trends, to empower them on the individual levels, and give them a know-how of the technopreneurial world through different activities. Those activities include different hackathons, webinars, community events, and technical workshops. 10Pearls University also offers different courses, and here are some examples for that. So there is much more to discuss about, but saving the time, we'll move on towards today's event. So today we have Saad Irfan with us. Saad is currently working in Developer Relations Department at an international firm, Rapid API. He has been doing community work since 2018, and he is also an MLH fellow and was also speaker in International Next.js conference. So without any further ado, I would like to hand over this virtual stage to you, Saad. But before that, let me tell you some house rules to keep the session energetic. And if you have any questions, so you can write that in the chat box. So that's all from my side. The stage is all yours, Saad. Thank you, Amna. Can you please give me rights to Sure. so I can start my video? Yes, sure. Okay. Just give me a moment. In the meantime, I can just share my screen so you guys have something to, look at. Okay, I hope you can see my screen You now. have access, Saad? Yes. Do I have access? Let me see if I can do it now. Okay, start video. Yeah, I can. Okay, so thank you for the introduction. Let me just start off this session real quick. So today we are going to talk about some advanced React.js concepts, and we will I will explain some of them to you. Code examples भी देखेंगे जो मैंने especially हर concept के around बनाई है ताकि सिर्फ theoretical चीज ना हो, हमारे पास कुछ practically implementation भी हो. Moving on. This is me. My name is Saad. I work with the Developer Relations Department of Rapid API. I am an XJS conference speaker. I interned at Major League Hacking. I do a lot of open source work, and I have authored like 20 plus open source tools that are used by thousands of developers. I am a former junior developer advocate at Warhogs. I founded GDSC in my university, if you know about it. I was a former Microsoft Lunch ambassador, and I have because I am from developer relations department, I have curated 200 plus developer resources for Rapid API and for other companies and generally around web and APIs. So yeah, that is pretty much about me, a brief introduction into who I am and what I do. So without any further ado, let's just move on. So this is the agenda that we are going to look at today. We are going to look at, React lazy loading, context API, optimization, higher order components, and some custom hooks. I changed it a bit. I did not have optimization. जो मैंने पहले जो आप लोगों ने शायद देखा भी होगा अगर जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे there was an agenda, so I did not had optimization in it. So I thought okay, yeah, this is an important concept and it's an advanced level concept, and everyone should know about it if they are working with React, because at some point in the project you definitely make use of it. So these are the 5 things that we are going to look at, and in this particular webinar.
So I'm not going to waste any time, and I'm just going to jump into the first thing, that is lazy loading. Because I think I cannot see participants. Let me see, because I don't know if anyone raised hands. Okay, so I can see them now. Anyways, so yeah, so I if you don't know about lazy loading, basically, by the way, this is intermediate kind of session, intermediate, advanced, somewhere in between. If you starting, if you have just started learning React, or you have built a couple of React projects, you will be fine. But अगर आप लोगों के React की बिल्कुल भी know how नहीं है, तो this session might not make sense to you, because everything and all the code examples are in React. So basic React understanding is necessary to understand the session and get the concepts. So just moving on, uh, what is actually like lazy loading? Because if you folks are into React, they're like React internally कैसे काम करती है? If you think about it, like if you write different components, उन components end पे क्या होता है? ठीक है? What actually happens is रिएक्ट जब आप रिएक्ट को रन करते हो, बिल्ड वगैरह क्रिएट होती है, या जब रन भी कर रहे होते हो, तो रिएक्ट एक फाइल बनाती है वेब पैक के थ्रू, बंडल डॉट जेएस के नाम से। उस बंडल डॉट जेएस में सब कुछ होता है। उस बंडल डॉट जेएस में आपके सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो आपने सारे बनाए होते हैं। सो देयर इज अ वेरी वेरी ह्यूज ड्रॉबैक टू दिस अप्रोच, और वो ये है कि ओके, सो लेट्स से आई हैव बिल्ड the next Facebook or next Instagram or somewhere, koi next Twitter, kuch bhi keh lo. So you know how huge the code base of each of these platforms can be. Like there will be like millions of lines of code. So if you have written like millions of lines of code and thousands of components, और जो end पे एक single build बनेगी, just imagine कि वो उसका size कितना बड़ा होगा. So especially this particular point decreases the performance so much, ठीक है, कि आपकी एप्लीकेशन को लोड होने में काफी टाइम लग जाता है. What if, like, for example, you have built a web application, it's in React, and you have made it live on the internet, and some other person who has such a good internet connection, they are trying to access it. They will have a hard time, loading it in their browser because they don't have a good internet connection. And your site bundle is such a huge file, तो वो इतनी बड़ी वो हो रही है कि ओके, वो उसे प्रॉपर्ली लोड होने में काफी टाइम लग जाएगा. सो दिस इज लाइक अ परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन, एंड इट्स नॉट वेरी ऑप्टिमल, राइट? So what React, because the whole session is about React. There will be a topic later where I will be discussing context API, and some people might say, okay यार, हम Redux भी तो use कर सकते हैं इधर, so why not Redux? So my answer to that will be simple, because this whole session is all about React and what React gives us. So there is the everything that I just discussed, the bundle and everything, there is this one thing, lazy loading. What if you can do this? Okay, you have built a component, और वो component even though it does, वो आपकी स्क्रीन पे शो नहीं हुआ, वो कहीं रेंडर नहीं हुआ आपकी स्क्रीन पे, even though कहीं पे भी नहीं हुआ, आपकी अभी तक स्क्रीन पे नहीं हुआ, but it is still in bundle.js, right? What if you can do this, कि जब तक वो आपकी स्क्रीन पे रेंडर नहीं होता, तब तक वो कंपोनेंट bundle.js में नहीं आए. फॉर एग्जाम्पल, इट विल, अगर ये अभी समझ नहीं आई, कोई मसला नहीं है. आई हैव अ कोड एग्जांपल फॉर इट which I will show it to you. हम इसे लाइव करके लाइव देखेंगे, which is वो सब ज्यादा इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा. बट to there's a bundle.js जिसमें lazy loading implemented नहीं है. उसमें सारे components हैं, even the ones जो अभी तक आपने स्क्रीन पे नहीं भी आए. But what if you can do this, कि यार okay, you can just lazy load a component, के जब आपका component show होना हो स्क्रीन पे, तभी वो bundle.js में आए. ठीक है? So let me just let see it in action, because yes, just okay, so I have created मैंने कुछ code examples बनाई हुई हैं. एक second, let me share them with you. मैं ये GitHub पे भी पड़ी हुई है, so I am just putting it down in the chat. कि अगर किसी ने देखनी है, ठीक है, they can just
open it, and अगर किसी ने experiment भी करना है, they can just clone it and fork it and whatever, right? So you can do it. Anyways, I hope मेरा VS Code सबको दिख रहा होगा. अगर किसी को कोई मुझे hand raise करके बता सकता है कि यार VS Code दिख रहा है, because I can't hear you folks. Yes, perfect. अच्छा, काफी लोगों को दिख रहा है. Nice, okay. So यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स बनाई हैं, ठीक है, जो आपको दिखाता हूँ. Because we are discussing lazy loading, let's go with it. और क्विकली मैं रन भी कर लेता हूँ. मैंने किया हुआ था ऑलरेडी. CD यार, ओके सॉरी, मेरे ना साइड पे वो आया हुआ यार. ये वीडियो को साइड पे करते हैं हम, और फिर हम npm स्टार्ट करते हैं. So it is going to open, it is going to start the server and open it up for us. So this is अब देखते हैं कि मेरा क्या मतलब है सारी इन चीजों में. So you can see there is this component I have created called index.tsx. Sorry, node के नाम से एक component है, फाइल का नाम index.tsx. So basically this is all TypeScript. So अगर किसी को I'm not going to explain the code a lot, क्योंकि these are just examples to explain you the overall concept, ठीक है? And you can just we use मैंने आपको link provide कर दिया. You can just fork it or clone it or whatever, and you can just experiment with them. So you can see there is this note component, and inside it there is this text Saad Irfan 10Pearls University. There is this text inside of it, right? और मैंने app.tsx में जा रहा हूँ. I have imported it at the top, ठीक है, component को. और मैंने यहाँ पे इसको मैंने एक बटन क्रिएट किया है. बटन क्या कर रहा है? बटन में एक फॉल्स डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स है. जब उस पर क्लिक करोगे तो वो ट्रू हो जाएगा, जब दोबारा क्लिक करोगे तो वो फॉल्स हो जाएगा. सो इट्स लाइक बैक एंड फोर्थ वो बूलियन वैल्यू को चेंज कर रहा है. और बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ द रेंडर स्टेट आई एम rendering a component. So this is basically conditional rendering that I'm doing here. ठीक है, React में if you know React, or if you are अगर आप if you have built in at least a single project in React, you probably would know what conditional rendering is. So I am conditionally rendering a component based on the value of render state variable. So if I just go back, let me मैं इसको like this is it, like click me, then it is going to render this Saad Irfan node component. If I click again, it is just going to hide it. So if I show you the source, let's go a little bit deeper and go to the source and open this bundle.js, which I'm talking about. Right now, you can see that there is no component. Okay, so right now you can see there is no VS Code. I have not, if I can even refresh it to, start from the very scratch. और अभी यहाँ पे कोई component node का render नहीं हुआ हुआ. Although if I just open the bundle.js file, ये मुझे इस तरह show हो जाएगी. And if I search for Saad Irfan, you will see that there is a component जिसमें a code already एक component node component बना हुआ है जिसमें 10Pearls University ये लिखा हुआ है. Although ये भी screen पे नहीं आया, but एक चीज ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है. सो अब लेजी लोडिंग करते हैं. अब लेजी लोडिंग करके क्या होगा? आई कैन जस्ट कमेंट दिस वन. लेजी लोडिंग हम कर लेते हैं इसको यहाँ से कमेंट करके, और हम लेजी लोडिंग का कोड अनकमेंट कर देते हैं. सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम डायनामिकली इंपोर्टिंग द कंपोनेंट इनसाइड माय एप्लीकेशन. ठीक है, मैंने लेजी का निकाल लिया रिएक्ट से, ठीक है, फंक्शन, और मैं वहां से मैं उसको इसमें इंपोर्ट कर रहा हूँ अपना कंपोनेंट, राइट. और फिर नीचे मुझे यहाँ पे मैंने उसे रेंडर कर लिया. बाय द वे, व्हाट इज सस्पेंस? जस्ट अ क्विक लुक, क्योंकि जो लेजी लोडिंग है ना, दैट इज एसिंक्रोनस. ठीक है, इट टेक्स अ बिट स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम. तो इन द मीन टाइम हमने कुछ तो रेंडर करना है ना. सो सस्पेंस excuse me, so suspense is like await. अगर जो जावास्क्रिप्ट में आप await कर रहे होते हो, या बेसिकली ये कुछ भी any alternative, right? So suspense उस वक्त तक चलता रहेगा. It's not like await, मैंने गलत कहा यहाँ पे, but overall ये तब तक it's like a fallback. जब तक आपका component load नहीं हो जाता तब तक ये चीज शो करो, ठीक है. और मैं क्या शो करा रहा हूँ? That is a div that's saying loading. So यहाँ पे मैंने uncomment कर दिया lazy loading का, ठीक है, सारा कोड. और जो मैंने बाकी सिमिलर अप्रोच, जो यूजुअल अप्रोच है, वो मैंने ऑलरेडी कर दी है. मैंने उसे कमेंट आउट कर दिया.
सो अगर अब मैं दोबारा रिफ्रेश करूं और मैं क्लिक मी पे क्लिक करूं, सॉरी दोबारा रिफ्रेश करता हूं, यहाँ पे बंडल पे हम देखते हैं बंडल डॉट जेएस, अब हम दोबारा ओपन करते हैं। एनीवेज, सो अब मैं यहाँ पे साथ फॉन्ट सर्च करूंगा ना, तो देयर विल बी नो कंपोनेंट। यहाँ पे बंडल में हमारा कंपोनेंट नहीं है, जो हमारा एक पूरा बंडल जो जनरेट हुआ है। लेकिन जैसे ही मैं क्लिक मी पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक साइड साइड पे फाइल क्रिएट हो गई है, और हमारा इसमें मैं सादे फॉन्ट सर्च करूंगा तो मेरा यहाँ पे शो हो जाएगा सादे फॉन्ट टेम्पल्स यूनिवर्सिटी। सो इट इज डायनेमिकली रेंडरिंग इन आवर इसमें हमारा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है रन टाइम पे बंडल डॉट जेएस Fast में, किधर है? ऑलरेडी हमारा नहीं पड़ा हुआ। एक्सक्यूज मी। ओके, सो बेसिकली दिस इज लेजी लोडिंग, ठीक है। और किसी ने कहा है कि शेयर कर दें यार, मैं ना चैट में दोबारा भेज देता हूँ, ठीक है। दिस इज द लिंक। ओके, गिव मी अ मोमेंट, चैट। और यहाँ पे मैंने चैट में भेज दी है, ठीक है। आप लोग चैट पे देख सकते हो फिर भी। ओके, सो दिस इज लेजी लोडिंग, ठीक है। अब लेट्स गो बैक, ठीक है। हम अगले पे जाते हैं। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द आई वुड से एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट्स जो आपको इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कि यार लेजी लोडिंग क्या होती है, ठीक है। आपने लेजी लोड कंपोनेंट को कब करते हो? अच्छा, मेक श्योर एक चीज, आई नीड टू मेक श्योर समथिंग, कि मैं आपको ये चीज बताऊं कि आपने हर कंपोनेंट को लेजी लोड नहीं कर देना चाहता, ठीक है। देर आर सम कंपोनेंट्स जिसको आप यू मेक श्योर कि यार, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन यूज केस टू यूज केस। देर आर सम कंपोनेंट्स जहाँ पे आपको उनको पहले ही रखना होता है कि वो पहले ही आपके बंडल में रहें। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर यूज केस। तो ये इसका आंसर नहीं है, क्योंकि समवन माइट से यार हम तो सारे कंपोनेंट्स को लेजी लोड कर सकते हैं। सो इसका आंसर मैंने कहा मैं आपको पहले ही इसको मैं बता दूं। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज कॉन्टेक्स्ट एपीआई। क्योंकि मैंने अभी पहले भी कहा था, सम पीपल माइट से दिस, व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट एपीआई? कॉन्टेक्स्ट एपीआई इज यूज्ड टू मैनेज स्टेट। सो सम पीपल माइट से यार व्हाट इफ हम रिडक्स यूज कर लें स्टेट मैनेजमेंट के लिए। सो टू आंसर दैट, क्योंकि दिस इज अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, टू आंसर दैट this is a React session, so we will focus on what React gives us by out of the box. So there is a context API which is actually a hook, a React hook that is used to manage state. you know some background overview about कहाँ पे किधर यूज होती है, किस चीज के लिए आई है। So imagine like you are building an application, another Facebook, because I don't know, because Facebook is React is developed by folks at Facebook, ठीक है। तो इस वजह से मैं Facebook भी मेरे माइंड में चल रहा। तो इमेजिन यू आर डेवलपिंग नेक्स्ट फेसबुक, ठीक है, और आपकी एप्लीकेशन बहुत बड़ी हो गई है, बट अब आपके पास ऐसा ऐसा आपके पास स्टेट है जो आपके सिबलिंग कंपोनेंट्स को चाहिए। सिबलिंग कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मैं आपको इससे अगली स्लाइड में दिखा सकता हूँ। ये होम पेज है, ये अबाउट है, ये प्रोजेक्ट है। ऐसी स्टेट जो आपके अबाउट पेज में है, ठीक है, और वो आपके प्रोजेक्ट को भी चाहिए। अब आप उसे ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आप, बिकॉज रिएक्ट फॉलोज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ डेटा, पेरेंट से चाइल्ड में आता है डेटा रिएक्ट में। तो आप इसमें ये तो नहीं कर सकते ना कि यार ओके अबाउट से आप प्रोजेक्ट में भेज दो, कैसे भेजोगे? कोई अबाउट एंड प्रोजेक्ट्स आर सिबलिंग्स, देयर इज नो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। Okay, you can say, यार, what if I can just put the state at the top, right? app.tsx में भेज दो, ठीक है, top level component में, and just pass it down as props, which is an answer, which is one answer to be honest, but uh, there is another thing here that you need to be very careful about कि यार what if the state आपको चाहिए वो component tree में बहुत नीचे कोई component है उसमें आपको चाहिए, ठीक है, और आप props के थ्रू भेज रहे हो, और आपकी इन द मिडल ऑफ समवेयर आपके प्रॉप्स में ना कोई पंगा पड़ गया, ठीक है। आपके प्रॉप्स में आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, यू लाइक कोई इस तरह का स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, या आपने एक दफा आपने प्रॉप पास कर लिया, अब आपको अगली एक स्टेट क्रिएट करनी है, फिर आप दोबारा सारे कंपोनेंट ट्री में हर कंपोनेंट में आप प्रॉप्स के थ्रू भेजोगे। सो इट्स अ वेरी हेक्टिक, और इट्स वेरी काइंड ऑफ हेक्टिक, डिफिकल्ट, ठीक है, एंड नॉट वेरी ऑप्टिमल। So what does React offers us to handle this kind of situation? It gives us context API. Context API में क्या होता है, ठीक है,
कॉन्टेक्स्ट एपीआई में क्या होता है कि आप एक कॉन्टेक्स्ट बना देते हो, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट इज अ फंक्शन एक्चुअली, जिसमें एक प्रोवाइडर होता है और एक कंज्यूमर होता है। तो आप एक फंक्शन बना देते हो, उसमें अपनी सारी स्टेट्स रख देते हो, और जो आपका टॉप लेवल कंपोनेंट होता है ना, लाइक इसको ऐप डॉट टी एस एक्स, उसको आप रैप कर देते हो उस कॉन्टेक्स्ट से, ठीक है। रैप एज इन के आपके जो ऐप डॉट टी एस एक्स है वो एज अ चिल्ड्रन जाता है आपके कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है। उससे ये होता है कि आपके कंपोनेंट ट्री में वो स्टेट चली जाती है, जो आप जो मतलब वो कंपोनेंट ट्री में हर जगह स्टेट चली जाती है। फिर आपने, अगर फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम रिपो कार्ड में आपने वो स्टेट एक्सेस करनी है जो अबाउट के अंदर है, ठीक है। So what you can do is you can just use the context inside this repo card and just extract the state. Acha, there is, this is generally what the idea is, ठीक है। But there is one other thing. What React की क्या इंटेंशन है ये प्रोवाइड करने की? React provides this ताकि आपकी जो ग्लोबल स्टेट्स है ना, ठीक है, जो यूजली ऐप डॉट ऐप टॉप लेवल रूट में पड़ी होती हैं, वो आपकी इजीली एक्सेसिबल हो डाउन द कंपोनेंट ट्री, ठीक है। वाई, और वो कौन सी स्टेट्स होती हैं बाय द वे? वो हो सकती हैं कि आपकी थीम क्या है, आप यूजर लॉगिन है या नहीं है, ठीक है। इसकी यूजर लॉगिन है या नहीं है, आप आपने राउट्स को प्रोटेक्ट किया होता है बेस्ड ऑन दिस, स्पेशली बेस्ड ऑन दिस। और भी चीजें होती हैं बट स्पेशली ऑन दिस, ठीक है, कि कुछ जो ग्लोबल लेवल पे आपको चाहिए होती हैं, ठीक है, वो आप मेनली आप कॉन्टेक्स्ट में डाल देते हो। अब यूजुअली कॉन्टेक्स्ट में इसके अलावा भी लोग यूज करते हैं कॉन्टेक्स्ट को बाकी स्टेट्स को मैनेज करने के लिए भी, ठीक है। बट देयर कम्स अ डाउन साइड। आपकी ऐसी स्टेट, ठीक है, जो अबाउट में पड़ी हुई है, ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल ऐसी स्टेट जो कार्ड में यूज हो रही है, आपने उसे कॉन्टेक्स्ट में डाल दिया है और आप उसे बाद में रीपो कार्ड में यूज कर रहे हो, जो दो सिबलिंग कंपोनेंट्स हैं, राइट। द इश्यू इज कि चूंकि वो कॉन्टेक्स्ट में पड़ी है, वो टॉप लेवल ट्री में है, ठीक है, टॉप लेवल कंपोनेंट के उसने कॉन्टेक्स्ट में रैप किया हुआ है, सारे कंपोनेंट्स उनको उस स्टेट को यूज कर सकते हैं। देयर इज दिस वन इश्यू विद दिस होल कॉन्टेक्स्ट एपीआई। सो ये इस वजह से, स्पेशली जो मैंने पहले बात की थी, कॉन्टेक्स्ट एपीआई उन चीजों के लिए, उन स्टेट्स को यूज करने, उन स्टेट्स को मैनेज करने के लिए यूज होती हैं जो ग्लोबल होती हैं, जो आपकी सारी एप्लीकेशन में यूज हो रही हो सकती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगेन मैंने मैंने बोला था यूजर की थीम, ठीक है, एप्लीकेशन की थीम क्या है, ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, मतलब ये कुछ चीजें, ठीक है। सो कॉन्टेक्स्ट एपीआई उस चीज के लिए मेनली यूज होती है, मेनली स्टेट मैनेजमेंट है ये। ओके, सो अगेन हम अगेन कोड एग्जांपल से देखते हैं ताकि आइडिया हो। सो ये जो मैंने बनाया है ना, ये मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन नहीं बनाया। ये जो मैंने आपको आगे कोड दिखाने लगा हूं, उसमें एक ऐप डॉट टी एस एक्स है जिसमें 3 पेजेस हैं। होम पेज जो लोकल होस्ट पे सिंपल 3000 पे रन होगा, अबाउट का पेज जो स्लैश अबाउट पे होगा, स्लैश प्रोजेक्ट का पेज। अबाउट के अंदर कार्ड का कंपोनेंट है और प्रोजेक्ट के अंदर रिपो कार्ड का कंपोनेंट है। सो दे ये इस तरह की ये हायरार्की है। ये गौर से याद रखना, ये मैं आपको बाद में भी दोबारा दिखाऊंगा ताकि आपको और अच्छा आइडिया हो जाए। बाय द वे प्लीज इग्नोर, क्योंकि आई स्पेंड like 4 to 5 hours on this, on creating all these examples कल। So I did not focus on CSS, और मैंने CSS भी अंदर ही लिखी होगी to be honest. So my main point is to give as much clarity आपको मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा concept का idea हो। So yeah, move on. Let's move on. Or what I'm going to do here is okay, so this is state management, right? So I'm just going to cd into it. Okay, and I'm going to start the server. It is going to run here. Give me a moment. Yes, so यहाँ पे ये इस तरह हो गया. So now if I go, अगर आप यहाँ पे ये state management का देखो, ठीक है? So these are the files. I have a components folder and I have a context folder. Inside the context folder, there is a folder called auth context, और उस folder के अंदर मैंने context create किया हुआ. And app.tsx के अंदर routes लिखे हुए हैं मैंने, ठीक है? This is a very simple and very simple example, ठीक है? ताकि आपको लोगों को आइडिया हो जाए। सो मैंने इसके अंदर राउट्स लिखे हुए हैं जिसमें एक ये राउट है, एक ये और एक ये है। ये 3 राउट्स हैं।
सो ये राउट जो होम पेज है, अगर मैं कंपोनेंट्स के अंदर मेरे पास पेजेस की डायरेक्टरी है और यूआई की डायरेक्टरी है। पेजेस में मेरे पास अबाउट का पेज है, होम पेज है और प्रोजेक्ट का पेज है, राइट। सो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे ये होम पेज रेंडर हो रहा है, ये वाला होम पेज, ठीक है, दिस इज जस्ट नेविगेशन और ये रेंडर हो रहा है। यहाँ पे ये अबाउट का पेज है और ये प्रोजेक्ट का पेज है, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज कि यार व्हाट इफ आई नीड सम स्टेट जो अबाउट में है, मेरे अबाउट के अंदर, बल्कि मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। सो अबाउट कंपोनेंट के अंदर आई हैव अ कार्ड कंपोनेंट जहां पे एक स्टेट मुझे यूज करनी है, ठीक है। लेट मी शो यू द कोड। अबाउट है, उसके अंदर मैं एक कार्ड का कंपोनेंट है मेरे पास, जो मैं उसमें कार्ड अबाउट के अंदर कार्ड का कंपोनेंट रेंडर कर रहा हूँ। और इनसाइड द कार्ड कंपोनेंट मैंने एक स्टेट है ईमेल की जो मैं यूज करना चाहता हूँ और मैं इसे डिस्प्ले करना चाहता हूँ, ठीक है। सो यू कैन सी दिस। और यही सेम, क्योंकि ईमेल यूजर की अगर कोई आपका ऑथेंटिकेटेड यूजर है तो उसकी ईमेल तो आपके, जो वो आपके प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है तो वो सेम ही होगी, राइट। वो डिफरेंट नहीं होगी। सो अगर मैं वापस जाऊं अबाउट के अंदर, किधर गया, सॉरी, अगर मैं यहाँ पे वापस प्रोजेक्ट में जाऊं तो यहाँ पे भी एक ईमेल है, ठीक है। अबाउट में भी सेम ईमेल है, राइट। सो मैंने, अगर आप लोगों को याद हो तो, एक अबाउट के पेज के अंदर कार्ड कंपोनेंट है और प्रोजेक्ट के पेज के अंदर रीपो कार्ड कंपोनेंट है। सो ये दोनों सिबलिंग्स हैं। सो मैंने इनकी स्टेट ऐप डॉट टी एस एक्स में नहीं डाली, क्योंकि उससे मुझे प्रॉस के थ्रू पहले अबाउट में भेजनी पड़ती और फिर मुझे कार्ड में भेजनी पड़ती, इसी तरह प्रोजेक्ट में भेजनी पड़ती और फिर रिपो कार्ड में। व्हाट आई डिड, आई क्रिएटेड अ कॉन्टेक्स्ट। मैंने एक कॉन्टेक्स्ट बनाया, ठीक है। रिएक्ट की क्रिएट कॉन्टेक्स्ट की यूज करके, मेथड यूज करके, और मैंने एक कॉन्टेक्स्ट बना लिया और क्रिएट कॉन्टेक्स्ट बना लिया। और फिर मैंने उसमें स्टेट्स बनाई जो मुझे यूज हो रही हैं, ठीक है। मेरी ईमेल सेट ईमेल इज लॉग्ड इन, सेट इज लॉग्ड इन। और फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से चिल्ड्रन निकाले। चिल्ड्रन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पे मैंने चिल्ड्रन को बस मैंने लोड कर दिया। और मैंने जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है, जो वो क्या प्रोवाइड करेगा, वो मैंने वैल्यूज दे दी हैं। वो वैल्यूज जो हमारा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करेगा, उसमें ईमेल है, सेट ईमेल का मेथड है, जो हमारा स्टेट का मेथड है, इज लॉग्ड इन है, सेट इज लॉग्ड इन है। सो ये चार चीजें हैं, ठीक है। अब ये जो कॉन्टेक्स्ट है ना, ये एक ऑथ प्रोवाइडर और ऑथ कॉन्टेक्स्ट को एक्सपोर्ट कर रहा है। मैंने क्या बताया था कि जो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट होता है वो टॉप लेवल कंपोनेंट को रैप कर लेता है। टॉप लेवल कंपोनेंट हमारा ऐप है, ठीक है। तो मैं इंडेक्स डॉट टी एस एक्स में गया और मैंने ऑथ प्रोवाइडर को निकाला ऑथ कॉन्टेक्स्ट से और ऐप को रैप कर लिया, ठीक है, एक सैंडविच की तरह रैप कर लिया। अब इस पूरे कंपोनेंट ट्री में मैं कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ ईमेल, सेट ईमेल इज लॉग्ड इन, सेट इज लॉग्ड इन, ठीक है। और मैंने क्या किया कि मैंने जो था, मैंने इसी तरह जो मैं, चूंकि मुझे इधर कार्ड में चाहिए ईमेल की वैल्यू और मुझे इसी तरह रिपो कार्ड में भी ईमेल की वैल्यू चाहिए, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट करके ईमेल निकाल ली और मैंने जो रिपो कार्ड है उधर भी मैंने यूज कॉन्टेक्स्ट करके ऑथ कॉन्टेक्स्ट उसमें डाला कि मुझे ऑथ कॉन्टेक्स्ट को यूज करना है, जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है ये वाला कॉन्टेक्स्ट, मुझे ये वाला पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट यूज करना है, ऑथ कॉन्टेक्स्ट। और मैंने उससे ईमेल निकाल ली, सेट ईमेल इज लॉग्ड इन, जो जो चीजें मुझे चाहिए थी, ठीक है। और अब अगर मैं आपको दिखाऊं, सो वी आर इन अबाउट और प्रोजेक्ट। अगर मैं यहाँ पे ईमेल चेंज करूं, john@gmail.com, ठीक है। और चूंकि दिस इज अ ग्लोबल स्टेट, ठीक है, अगर मैं इसको, अब मैं इसे अबाउट में जाऊंगा तो यहाँ पे भी john@gmail.com है। ऑल दो दोनों कंपोनेंट्स सिबलिंग है। सो हम सिबलिंग कंपोनेंट्स होकर के, सब सिबलिंग कंपोनेंट्स में हम स्टेट को हम यूज कर सकते हैं, स्टेट वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं जो परसिस्टेंट रहेंगे, जो खत्म नहीं हो जाएंगे, ठीक है। ऐप डॉट टी एस एक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। सो अब दिस इज नॉट जस्ट कि आप सिर्फ ऐप डॉट टी एस एक्स को ही रैप कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी स्टेट है, ठीक है, जो लेट्स अज्यूम कि यार रुके, आप ऐप डॉट टी एस एक्स, आप कुछ ऐसी स्टेट है जो सिर्फ और सिर्फ इस कंपोनेंट, इस ट्री को में यूज होगी, ठीक है। जरूरी नहीं है सिबलिंग सिबलिंग,
ठीक है। यू अगर आप प्रॉप्स को अवॉइड करना चाह रहे हो तो आप ये भी कर सकते हो कि यार कोई ऐसी स्टेट है जो अबाउट में पड़ी है लेकिन कार्ड के अंदर भी आगे कंपोनेंट्स हैं, उसके अंदर भी आगे कंपोनेंट्स हैं, तो आप अबाउट के अंदर कार्ड को रैप कर दो। ठीक है, उसी सैंडविच की तरह जो मैंने ऐप डॉट टीएसएस को इधर किया हुआ है, किधर गया, इधर, जैसे मैंने इधर किया हुआ है, मैं उसको कार्ड कंपोनेंट को कर दूंगा ताकि मेरे पास वो स्टेट जो मैं चाहता हूं, जो अबाउट में मेरी यूज हो रही है, ठीक है, वो सारी की सारी कार्ड, सारे के सारी नीचे कंपोनेंट ट्री को मिल जाए। ठीक है, उससे ये होगा कि यार मेरी वो स्टेट उधर मुझे प्रॉप्स के थ्रू भेजनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो ये एक जनरल ओवरव्यू है कॉन्टेक्स्ट एपीआई का, और ये कोड एग्जांपल से हमने ये देख ली। सो लेट्स मूव ऑन। आई होप किसी का अभी तक कोई क्वेश्चन अगर है तो मैं एंड पे कर लेंगे। ओह ओके, सो मैंने आई थिंक कोड एग्जांपल भी दिखा दी है। ठीक है, सो देयर इज दिस थिंग ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्यों? कोड ऑप्टिमाइज नहीं हुआ तो आपकी एप्लीकेशन सफर करेगी, परफॉर्मेंस सफर करेगी। सो ऑप्टिमाइजेशन, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। रिएक्ट किस तरह काम करती है, जब एक छोटी सी स्टेट या फॉर एग्जांपल आपने, लेट्स अज्यूम आपने स्टेट रखी हुई है एक कंपोनेंट के रेंडर होने की। ठीक है, कि वही जिस तरह मैंने कंडीशनल रेंडरिंग की हुई थी, रेंडर का स्टेट बना के, जब वो होगा ना, स्टेट चेंज होगी या प्रॉप चेंज होगा एक कंपोनेंट के अंदर, तो सारे के सारे कंपोनेंट्स जो उस कंपोनेंट के अंदर होंगे वो दोबारा रेंडर होंगे। सो अज्यूम कि आपके बहुत बड़ा कंपोनेंट ट्री है। ठीक है, एक टॉप लेवल कंपोनेंट के अंदर एक स्टेट चेंज होती है, और उस स्टेट के चेंज होने से ऑल्दो बाकी कंपोनेंट्स को जो शायद उसके अंदर हैं, उस कंपोनेंट ट्री के अंदर, उनको कोई अफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर भी वो रीरेंडर हो रहे हैं। इसका क्या मतलब? ये चीज एक तरह से ना परफॉर्मेंस को तबाह कर देती है। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। लेट्स अज्यूम कि यार ओके, आपने आपने एक एपीआई कॉल की है। ठीक है, एक एपीआई कॉल हुई है, और वो कब हुई थी? जब आपने पेज लोड हुआ है। ठीक है, यूज इफेक्ट में डाल दिया। ठीक है, व्हाट इफ जब आपने स्टेट चेंज करोगे, कोई भी स्टेट चेंज करोगे, छोटी से छोटी भी, तो वो यूज इफेक्ट दोबारा एग्जीक्यूट हो गया, या आपने अगर वो दोबारा एग्जीक्यूट नहीं भी होता, ठीक है, वैसे दोबारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, या फिर और भी स्टेट्स होंगी, और भी कंडीशंस होंगी जिसमें आपका कोड या नीचे कोई उसमें कोई कंपोनेंट हो, ठीक है, जो आपका ऊपर हायर, जो आपका रूट लेवल कंपोनेंट है, ठीक है, उसके अंदर जो चाइल्ड कंपोनेंट है उसमें आपने एपीआई कॉल की हुई है, रूट लेवल में स्टेट चेंज हुई है, तो नीचे चाइल्ड में दोबारा से एपीआई कॉल हो गई है, क्योंकि सारे कंपोनेंट्स दोबारा री रेंडर हो रहे हैं नीचे वाले। ठीक है, क्योंकि दिस इज हाउ रिएक्ट वर्क्स बाय द वे। रिएक्ट के अगर एक एक दफा स्टेट चेंज होगी, उस कंपोनेंट के अंदर जितने कंपोनेंट्स हैं वो दोबारा री रेंडर होंगे। ठीक है, सो अगर उनमें से कोई चाइल्ड में कोई एपीआई कॉल हो रही है चाइल्ड कंपोनेंट में, तो दोबारा वो एपीआई कॉल होगी। सो दिस इज एक्चुअली नॉट गुड, क्योंकि आपकी यूजर की बैंडविड्थ यूज हो रही है बार बार इससे। सो हाँ, सो बेसिकली देयर आर अ लॉट ऑफ अननेसेसरी एपीआई कॉल्स इन दिस कंडीशन में। ठीक है, जो आपको जरूरी भी नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा ये भी इशू है कि यार ओके, क्या आपका कोड भी बार बार आपका सारे कंपोनेंट्स रीरेंडर हो रही हैं, तो आपके कोड की भी परफॉर्मेंस आहिस्ता आहिस्ता डिग्रेड हो रही है। सो इस चीज को हैंडल करने के लिए रिएक्ट इंट्रोड्यूस्ड यूज कॉल बैक एंड यूज मीमो, आई थिंक मीमो ही प्रोनाउंस करते हैं। So, code example. Back to code examples. Okay, so अगर मैं इसे दोबारा, अब हम ऑप्टिमाइजेशन को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, npm start. So ये एक छोटा, ये अब दोबारा एक अगली एक और एप्लीकेशन मुझे रेंडर कर रहा है। ठीक है, ओपन करके दे रहा है, एक सेकेंड। यस, सो ओके, सो हाँ, सो देयर इज दिस एप्लीकेशन। ठीक है, अच्छा मैंने अभी एक बात नहीं बताई जो भी मैं आपको आगे बताता हूँ, मैंने एक चीज मिस किया। ओके, सो हमारे पास ये स्टेट मैनेजमेंट नहीं, ऑप्टिमाइजेशन, सोर्स में जाते हैं, कंपोनेंट में। अच्छा, सो आई हैव क्रिएटेड दिस नोट कंपोनेंट जो हमारा पास हमने पहले यूज देखा था लेजी लोडिंग में। ठीक है, वही ये सेम कंपोनेंट है। ठीक है, देयर इज नथिंग चेंज्ड अबाउट इट, सब कुछ सेम है। ठीक है, मैं वही कंपोनेंट अपने app.tsx में यूज कर रहा हूँ। ठीक है, हम अभी सिर्फ देखते हैं एक एक और चीज देखते हैं, वो क्या है?
लेट्स अज्यूम कि हमारा जो कंपोनेंट है वो कुछ हाईली कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस कर रहा है जो सेम होंगी, जो जो हमेशा सेम रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगी। बट पहली दफा जब वो कंप्यूट करेगा तो सिस्टम रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, जब दूसरी दफा करेगा ऑफकोर्स तब भी सिस्टम रिसोर्सेज यूज होंगे, ठीक है। सो देयर इज सम हाई लेवल ऑफ कंप्यूटेशन दैट इज गोइंग ऑन एंड इट इज यूजिंग अ लॉट ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज, ठीक है। सो नाउ जब आप छोटी सी स्टेट चेंज करोगे तो सारा कंपोनेंट दोबारा री रेंडर होगा, और उस री रेंडर की वजह से आपका सारा का सारा सारा की सारी वो कंप्यूटेशंस दोबारा होंगी, ऑल्दो दे आर प्रोड्यूसिंग द सेम रिजल्ट। सो इस चीज को पर्सनली टैकल करने के लिए यूज मीमो इंट्रोड्यूस हुई। जब हमारे पास हमने कोई पर्टिकुलर एक सिंगल रिजल्ट हमारे पास आ रहा होता है, जब एक काइंड ऑफ एक वैल्यू होती है, इट कैन बी एन अरे, इट इज एनीथिंग दैट अ फंक्शन दैट रिटर्न्स, ठीक है, वो फंक्शन बेसिकली रिटर्न कर रहा होता है। सो लेट्स सी लाइक दिस कि अगर हम इसको देखते हैं। मैं ये बंद करने लगा हूँ, ठीक है। अभी हमने सिर्फ यूज मीमो का देखना है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने 3 स्टेट्स बनाई हैं, ठीक है। एक है रेंडर, एक है बस हमने अभी तक सिर्फ रेंडर को गौर करना है, रेंडर पे, ठीक है। रेंडर की बेसिस पे ये वही वाला कोड है लेजी लोडिंग वाला, ठीक है। मैं एक बटन है जो जब क्लिक होता है तो वो क्या कहते हैं, हाँ सॉरी, जब वो क्लिक होता है तो वो एक नोट को रेंडर कर देता है। सो वो सारी की सारी सेम चीजें हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक कंसोल डॉट लॉग लिखा है जिसमें लिखा हुआ है आई एम इनसाइड द कंपोनेंट, ठीक है, या आई एम आउटसाइड यूज मीमो, ठीक है। और देन आई हैव रिटन अ फंक्शन जो यूज मीमो के अंदर है, ठीक है। और मैंने उसमें लिखा हुआ है आई एम इन यूज मीमो, ठीक है। और उसमें मैं, let's imagine there are some complex computations, like this is a complex computation for me, I don't like maths a lot. So let's imagine I have written some very difficult computations जिससे हमारे system resources बहुत ज़्यादा utilize हो रहे हैं and we don't want to do it again and again. Anyways, so what happens is कि जब मैं पहली दफा I'm going to refresh the application, जब मैं पहली दफा करूंगा, so you will see कि यार I am inside the component and I am in use memo, यानी ये वाला एक दफा हुआ और फिर सॉरी एक दफा ये वाला हुआ और फिर एक दफा ये वाला हुआ, ठीक है। अब अच्छा, बाय द वे, अगर आप ये सोचो कि यार ये भी तो है, तो अब रिसेंटली रिएक्ट आई थिंक 18 से ना हमारी 2 दफा एक कंपोनेंट 2 दफा रेंडर होता है, मुझे एग्जैक्ट उसका याद नहीं है, बट देयर इज सम दिस केस के यूज इफेक्ट भी 2 दफा कॉल होता है जब कंपोनेंट माउंट होता है उस पर। बट अभी हम ये देख रहे हैं कि ओके यार आई एम इनसाइड द कंपोनेंट, आई एम इन यूज मीमो, ठीक है। अब मैं एक दफा दोबारा बेशक करके कर देता हूँ रिफ्रेश, आई एम इनसाइड द कंपोनेंट, आई एम इन यूज मीमो। अब मैंने क्लिक मी करूंगा तो इससे मेरी स्टेट चेंज होगी, जो रेंडर स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। वो स्टेट जब चेंज होगी तो इस ऐप डॉट टी एस एक्स के अंदर जो भी, एज ऐप डॉट टी एस एक्स के अंदर क्या चाहिए, सो जब वो ऐप डॉट टी एस एक्स के अंदर जो भी कंपोनेंट्स होंगे वो दोबारा री रेंडर होंगे, इंक्लूडिंग ऐप डॉट टी एस एक्स, ठीक है, और उसके अंदर वाले कंपोनेंट्स भी, क्योंकि मैंने स्टेट को चेंज किया होगा, पूरा कंपोनेंट दोबारा री रेंडर होगा ऐप डॉट टी एस एक्स का ऐप कंपोनेंट। अगर मैं क्लिक नहीं करूंगा, अभी मैं दोबारा देखो यहाँ पे आई एम इनसाइड द कंपोनेंट है और आई एम इन यूज मीमो है, ठीक है। सो बहुत, अब ये दोनों कॉल हुए हैं। अब मैं क्लिक मी करूंगा तो मेरा कंपोनेंट ये शो हो गया, ये जो नोट दोबारा शो हो गया। लेकिन अगर आप नीचे देखो, ठीक है, तो यहाँ पे आई एम इनसाइड द कंपोनेंट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आई एम इन यूज मीमो नहीं है, ऑल्दो यहाँ पे वैल्यू यूज हो रही है। बाय द वे, यूज मीमो ने ना एक वैल्यू रिटर्न की थी क्योंकि फंक्शन ने कुछ कैलकुलेशन की और एक वैल्यू रिटर्न की जो नोट्स में सेव हो गई, और वो मैं नीचे रेंडर कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देख रहे हो नोट्स में, ठीक है। यहाँ पे मैंने उस वैल्यू को एक्सेस कर रहा हूँ। सो अगर मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो दोबारा हुआ आई एम इनसाइड द कंपोनेंट, बट आई एम इन यूज मीमो वो नहीं हुआ एग्जीक्यूट। इससे ये हो गया हमारे, इससे क्या हुआ, इससे हमारे पास ये हुआ कि हमारे पास अननेसेसरी री रेंडरिंग्स नहीं होंगी, ठीक है। सो देख रहे हो,
So there is no I am in use Mimo. So this is I am inside use Mimo. So this is use Mimo, and ये ऑप्टिमाइजेशन की पहली चीज आ जाती है. यूज मीमो एक रिएक्ट की जो हुक है. नेक्स्ट चीज, अगर मैं इसे क्लियर करूं, अब हम देखते हैं यूज कॉल बैक. यूज कॉल बैक का सिनारियो वो है जो मैंने आपको पहले बताया था कि यार ओके व्हाट इफ देयर इज एन एपीआई कॉल हो रही हो, वो जब भी कंपोनेंट रेंडर होगा तो दोबारा एपीआई कॉल होगी. ठीक है, चाइल्ड कंपोनेंट्स में हो सकती है एपीआई कॉल, वो दोबारा हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो यूज कॉल बैक क्या करता है? यूज कॉल बैक क्या यूज कॉल बैक ये करता है कि वो ना जो यहाँ पे इसकी जो ये एक फंक्शन लेता है, ठीक है, और साथ एक डिपेंडेंसी अरे लेता है, ठीक है, लाइक यूज इफेक्ट. ठीक है, डिपेंडेंसी अरे में जो वैल्यू आप जो भी स्टेट वेरिएबल जो इसमें यूज हो रहा होगा, ठीक है, वो इधर डिपेंडेंट होगा, ठीक है, और वो इधर यूज होगा, ठीक है, इसके इधर डिपेंडेंसी अरे में आएगी. और जब भी यू ये वैल्यू चेंज होगी, ओनली उस वक्त ये फंक्शन दोबारा एग्जीक्यूट होगा, वरना ये फंक्शन कभी भी रेंडर्स री रेंडर्स पे एग्जीक्यूट नहीं होगा. ठीक है, दोबारा मैं बोलता हूँ, जब अगर आपने यूज कॉल बैक नहीं यूज करोगे तो जब भी आपकी स्टेट चेंज होगी, नीचे में भी चाइल्ड कंपोनेंट में एपीआई कॉल हो रही हो, एपीआई कॉल हो रही होगी, तो वो कंपोनेंट जब चूंकि स्टेट चेंज हुई है, सारा कंपोनेंट ट्री दोबारा रीरेंडर होगा और वो एपीआई कॉल दोबारा होगी. सो दिस इज अ वेरी परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस नहीं, मतलब परफॉर्मेंस भी और ऑप्टिमम भी नहीं है, ठीक है, और परफॉर्मेंस भी कर रही है, बैंडविड्थ ज्यादा यूज हो रही है. सो विद यूज कॉल बैक आपने यहाँ पे एक फंक्शन देना और आपने एक डिपेंडेंसी अरे देनी है जिसमें आप वो यूज करोगे, वो स्टेट या प्रॉप यूज करोगे जिसकी बेसिस पे जब वो उसकी पर्टिकुलरली उसकी वैल्यू चेंज हो, तब ये कंपोनेंट दोबारा ये वाला फंक्शन दोबारा रेंडर हो. सो एक्चुअली यूज मीमो में एक वैल्यू रिटर्न होती है और यूज कॉल बैक में एक फंक्शन रिटर्न होता है. देयर इज अ डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज. यूज मीमो में एक वैल्यू रिटर्न होगी, यूज कॉल बैक में एक फंक्शन रिटर्न होगा. अब यहाँ पे गेट डेटा का फंक्शन है. आई बाय द वे, हाँ, आगे मैं से यूज इफेक्ट में डाल रहा हूँ गेट डेटा, और मैंने गेट डेटा ही उसकी डिपेंडेंसी रखी हुई है. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें, हाँ, अजहर सही ने कहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूज मीमो एंड यूज कॉल बैक. यार यूज कॉल बैक मैंने वही बताया कि यूज मीमो एक वैल्यू रिटर्न करता है, यूज कॉल बैक एक फंक्शन रिटर्न करता है. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज अ वैल्यू, लेकिन जो यूज कॉल बैक है यहाँ पे वो एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है. यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ. हाँ, यहाँ पे ये देखो कि मैंने अगर मैं आप इसका कोड, अगर इफ यू रीड कोड, ठीक है, इसमें आप देखो कि मैं एक एपीआई कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, जो जब कंपोनेंट रेंडर होता है उस वक्त होती है, और उसमें रिस्पॉन्स की वैल्यू में सेट कर रहा हूँ. मैंने ऊपर एक रिस्पॉन्स वेरिएबल बनाया हुआ है, स्टेट वेरिएबल बनाया हुआ है, उसमें मैंने उसकी वैल्यू सेव की है. ठीक है, और जो रिजल्ट आ रहा है ना एपीआई से, वो मैंने रिस्पॉन्स में सेव किया हुआ है. ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि पोस्ट आईडी की बेस पे अगर पोस्ट आईडी चेंज हो, तब ओनली तब हमारा ये दोबारा फंक्शन एग्जीक्यूट हो, उससे पहले नहीं. कभी भी रीरेंडर्स पे ये फंक्शन एग्जीक्यूट ना हो. सो आगे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने रिस्पॉन्स को एज अ जेसन, मैंने स्ट्रिंगिफाई करके मैं इसे एज अ जेसन में इस तरह शो करा रहा हूँ. यहाँ पे ये आपको शो हो रहा है, ठीक है, ये हिस्सा. ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया हुआ है जिसमें मैं अगर क्लिक करूंगा तो वो अगली पोस्ट आईडी, यानी पोस्ट आईडी जो होगी ना, अभी पोस्ट आईडी 1 है, ठीक है, जब मैं उस बटन पे क्लिक करूंगा तो पोस्ट आईडी में 1 प्लस होके वो 2 हो जाएगी, दोबारा करूंगा तो 3 हो जाएगी, दोबारा करूंगा तो 4 हो जाएगी. सो यहाँ पे एक बटन बना हुआ है जो पोस्ट आईडी है, ठीक है, और वो जो पोस्ट आईडी को चेंज कर रहा है, और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोस्ट आईडी चेंज हो तभी ये फंक्शन एग्जीक्यूट करना, उससे पहले रीड एंडर से मत एग्जीक्यूट करना. सो हाँ, वो ये करता है, बट देयर इज एन इशू. आप लाइक डू दैट एंड देन वो आप उसमें क्या कहते हैं, इसको पास करो. ठीक है, उसमें क्या नाम है यार, आप जो आप बात कर रहे हो ना, वो होता है जब आपका कंपोनेंट दोबारा रीरेंडर होगा ना, तब ये नहीं होगा. लेकिन एक और चीज मैं आपको कहूंगा कि डू दिस, और ना इसी को, इस फंक्शन को डिपेंडेंसी अरे में डालो. यूज अफेक्ट चीखे मारेगा कि इसे यूज कॉल बैक में डालो. ठीक है, देर इज लाइक यूज इफेक्ट करता है. जो आप बात कर रहे हो वो है बेसिकली कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट विल माउंट, कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट विल माउंट, इसके बेसिकली वो मेथड्स है ना. तो इसमें वन ऑफ दी, अगर आपकी एम्प्टी डिपेंडेंसी रो तो डिपेंडेंसी अरे होगी तो इट इज कंपोनेंट डिड माउंट. अगर आपने उसमें कुछ डाला हुआ है इट विल बी कंपोनेंट विल माउंट. ठीक है,
कंपोनेंट ये, और अगर आप उससे रिटर्न कर रहे हो तो कंपोनेंट विल अनबाउंड, ऐसी कोई था, मुझे तीसरा वाला याद नहीं है। सो आप उसको इसे रैप करो, ठीक है, इसी ये फंक्शन बनाओ, ठीक है, बल्कि मैं आई कैन इवन जस्ट शो यू यार, आई कैन जस्ट शो यू। अब मैं इसको, एक सेकंड रुको। const get data, ठीक है, and just copy this from here, paste it here, ठीक है, और let's this, ये देख रहे हो, यहाँ पे the get data function makes dependency of use effect hook, change on every at line this, change on every render, move it inside use effect callback. So alternatively wrap the definition of get data in its own use callback hook. So I hope यहाँ से थोड़ी ये क्लियर हुआ होगा। मूविंग ऑन, एक सेकंड मैं अनकमेंट कर दूं। सो मैं अभी वैसे हमारा टाइम बहुत कम है। ओके, सो बेसिकली इफ आई जस्ट शो यू नाउ, बाय द वे मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। नहीं, ये इसको रख लेते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। सो अगर मैं अब आप देखो तो वी हैव आई एम इनसाइड द कंपोनेंट एंड देन देयर इज दिस, राइट। और चूंकि वो React 18 में 2 दफा कंपोनेंट माउंट होता है तो इस वजह से ये 2 दफा हमें शो हो रहा है। लेकिन अगर मैं अब क्लिक मी पे क्लिक करूंगा, ठीक है, सो मेरे पास बार बार, चूंकि अगर कंपोनेंट दोबारा वो फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए तो ये console.log जो ये वाला है, ठीक है, यहाँ पे डेटा है, ठीक है, ये वाला मुझे नहीं शो हो रहा, ये डेटा मुझे बार बार नहीं शो हो रहा है। यहाँ पे आप देखो ना, अगर मैं क्लिक मी करता जा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं नेक्स्ट पोस्ट पे क्लिक करूंगा जो मेरी पोस्ट आईडी को +1 कर देगा, तो मेरे पास तब नया डेटा शो हो रहा, ठीक है, और तब भी ये हो रहा। लेकिन मैं क्लिक नहीं करूंगा, कुछ नहीं होगा। पोस्ट नेक्स्ट पोस्ट करूंगा तो शो हो जाएगा। सो ये चीज, इस चीज का देख लो। हाँ, सो ये चीज दिस इज लाइक अ प्रैक्टिकल एग्जांपल कि यार ओके, हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, ठीक है। और एक सेकेंड, सो बेसिकली बोथ ऑफ दीज ये परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए हुक्स यूज होती हैं, ठीक है। अगर आप लोगों का ऐसा कोई फंक्शन है जो बार बार आपका, मतलब आप चाह रहे हो कि यार ये एपीआई कॉल बार बार ना हो, इसलिए, ठीक है, बार बार ये एग्जीक्यूट ना हो रहा हो हर रीरेंडर पे, तो यू कैन जस्ट पुट इट इन यूज कॉल बैक एंड यू नो कैन काइंड ऑफ कंडीशनली एग्जीक्यूटेड, ठीक है, जिससे आपकी बार बार अननेसेसरी एपीआई कॉल्स वगैरह नहीं होंगी। Okay, so can we use memo and use effect? यार use memo आपका कंपोनेंट जब माउंट होता है ना तब एग्जीक्यूट होता है, तो यू डोंट हैव टू। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो मैं जब रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास 6383 ये लिखा आ रहा होता है ना ऑलरेडी पहले से। हालांकि यहाँ पे ये कंप्यूट हो रहा है, यहाँ पे ये देख रहे हो, यहाँ पे ये कंप्यूट हो रहा है। ओके, सो आई डोंट थिंक वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। आई होप यहाँ तक कुछ चीजें होंगी जो पता चल गई होंगी, आइडिया हो गया होगा चीजों का। मैंने कोड अगर अब बिकॉज वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, और अब अदरवाइज आप वो भी उसे देख सकते हो, उसकी मैंने ऑलरेडी एग्जांपल क्रिएट की हुई है। सो हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स, अब हमारे पास एक और अप्रोच है। बेसिकली दिस इज काइंड ऑफ एन अप्रोच रादर देन kind of a pattern rather than something that React provides us. And what it is, it generally, ऐसा हो सकता है कि यार different components same logic use कर रहे हो। So generally, but there is a thing that dry approach. We should always avoid dry approach. Don't repeat yourself, okay? So if we have written a code in one place, we should not repeat it, copy paste it in some other component, right? So there is this kind of this approach, so हमें हमेशा avoid करनी चाहिए. So there are some components, maybe there will be the most common example is like आपने counter और hover की example है कि यार okay, आपने काउंटर और होवर जब भी दो वो हैं, क्या कहते हैं, इवेंट्स हैं, ऑन क्लिक और ऑन होवर, लेकिन दोनों ही स्टेट को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज वेरी 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 बेसिक एग्जांपल, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम कोड, क्योंकि वो तो एट द एंड तो वो एक फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना जिसमें स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है, यू कैन जस्ट create a higher order component. By the way, this is a very very basic example. इतनी basic example भी create नहीं होते, but you just
give an idea. So basically higher order component is actually a function, ठीक है, जो एक component को as an पैरामीटर लेता है, ठीक है, पैरामीटर को as a component को लेता है और वो रिटर्न करता है एक updated component, ठीक है. So it takes a function as a parameter and then it returns an updated component, ठीक है. So एक इसमें एक चीज है बेसिकली कि जो हायर ऑर्डर कंपोनेंट में ना ज्यादातर वो वाली लॉजिक भी यूज होती है, ठीक है, जो स्टेट की होती है. लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से देयर इज अ स्टेट जो आपकी देयर इज अ लाइक काउंटर होवर में थी, काउंटर और होवर में दोनों में नंबर होगा, कोई ना कोई काउंटर तो होगा ना जो बटन पे होवर करने से काउंटर चेंज हो रहा होगा या यू नो क्लिक करने से काउंटर चेंज हो रहा होगा, ठीक है. सो देयर इज अ नंबर कुछ होगा, ठीक है. सो देयर इज एक्चुअली अ स्टेट, ठीक है, जो आपको बेसिकली वो वाला कोड जो बेसिकली आपको स्टेट में जहां पे आपकी स्टेट भी इन्वॉल्व हो रही हो ना, ठीक है, वो आप हायर ऑर्डर कंपोनेंट में डाल देते हो. उससे ये होता है ऑल दो बाय द वे हायर ऑर्डर कंपोनेंट यूज करने से ऐसा नहीं होता कि वो स्टेट सेम ही हो जाती है, ठीक है, वो स्टेट डिफरेंट ही रहती है, ठीक है, बट आपको वो कोड एक दफा लिखना पड़ता है, ठीक है. सो इट्स मोर ऑफ अ कोड रीयूजेबिलिटी, ठीक है. लाइक दिस इज अ ब्लॉग एंड गाइड, दोनों लेट्स से सेम कोड सेम कोई आर्टिकल्स कोई रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, सेम काइंड ऑफ डेटा रिसीव कर रहे हैं, लेट्स अज्यूम, ठीक है. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन क्रिएट अ हायर ऑर्डर कंपोनेंट विद पोस्ट. बाय द वे विद इज द कन्वेंशन के विद आप स्मॉल विद कैमल केस और विद आप शुरू में ऐड कर दो, दिस इज द कन्वेंशन, ठीक है. सो आप उसमें उसे हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्रिएट करके उससे उसमें गाइड को एज अ पैरामीटर भेज दो और कॉमन फंक्शनैलिटीज उस गाइड में भी आ जाएंगी, कॉमन फंक्शनैलिटी एंड स्टेट, कॉमन फंक्शनैलिटी एंड स्टेट. एग्जांपल देखते हैं. सो इफ आई डू दिस and HOC clear npm start, I think this might be the last one because we are running out of time. Next second. Okay, give me a moment. Okay, so basically हमने मेरे पास अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, सो आई हैव दिस क्या गया यार, HOC सोर्स, आई हैव अ डेटा विद data.json, ठीक है, जिसमें मेरे पास डेटा है. ये बाय द वे जेसन प्लेस होल्डर एपीआई का डेटा है, ठीक है. सो मेरे पास एक डेटा है, ठीक है, काफी ज्यादा 100 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, एक अरे में. अब मेरे पास दोनों पे सिमिलर लेट्स से मेथड्स अप्लाई करने हैं, ठीक है, ये सिमिलर उन पे स्टेट वेरिएबल्स आगे यूज हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. सो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने ना यहाँ पे एक क्या कहते हैं दो कंपोनेंट्स बना लिए, एक का नाम ब्लॉग है, एक का नाम गाइड है, ठीक है. जो ब्लॉग है वो एक गेट आईडी एंड टाइटल यूज कर रहा है, ठीक है, मेथड, और जो गाइड है वो गेट टाइटल एंड बॉडी यूज कर रहा है. बेसिकली टू डिफरेंट मेथड्स, बट फायदा ये है बट डेटा सेम ही है जिसपे वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, जिसपे वो जिस डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं. सो व्हाट इफ आई कैन जस्ट क्रिएट अ हायर ऑर्डर कंपोनेंट. What I can do is I can create by the way, higher order components are actually functions and they return an updated component. So what I can do is I can just create a create a function with post. Wrap component के नाम जो होगा, ठीक है, वो मैं निकाल लूँ उससे, और वो एक actually a functional component है, ठीक है. This is all TypeScript. अगर आप लोगों को नहीं आइडिया, इसे बेशक इग्नोर कर दो, ये वाले कॉलम के बाद जो पार्ट्स हैं. And then I wrote two functions inside the higher order component. और मैंने जो wrapped component उसको मैं by the way एक function कोई ना कोई चीज रिटर्न करेगा, राइट. फंक्शन कोई ना कोई चीज रिटर्न करेगा, और मैंने जब वो रिटर्न कर रहा है तो आगे इसके अंदर वो आगे क्या कहते हैं एक और कंपोनेंट को रिटर्न कर रहा है. दिस इज काइंड ऑफ ये चीज दिस पार्ट इज एक्चुअली क्या कहते हैं उसे फंक्शनल कंपोनेंट. मैंने एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शनल कंपोनेंट लिख रहा हूँ, ठीक है. ये रिटर्न जो ये फंक्शन है, फंक्शन एक फंक्शनल कंपोनेंट रिटर्न कर रहा है, इफ दैट मेक सेंस. एक फंक्शन है जो रिटर्न कर रहा है एक फंक्शनल कंपोनेंट, और उस फंक्शनल कंपोनेंट में मेरे पास जो रैप्ड कंपोनेंट आया था वो है, ठीक है, सिंपल.
और मैंने उसको गेट टाइटल बॉडी एंड दे दिया है और मैंने ये पास कर दिया है, और यहाँ से भी मैंने गेट आईडी एंड टाइटल दे दिया और पास कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है। चीज क्या है कि ना, देयर माइट बी सम मोर प्रॉप्स जो मैंने कंपोनेंट रैप कर रहा हूँ उसमें कोई और प्रॉप्स भी आ रहे हो, मे बी, हो सकता है। सो मैंने आई नीड टू मेक श्योर कि आई स्प्रेड दोस प्रॉप्स इनसाइड द रैप कंपोनेंट, ताकि वो जो रैप कंपोनेंट जो है वो उन प्रॉप्स को भी एक्सेस कर सके। सो इसको लेट मी हाइड floating meters. So now if I go back, तो I have this get title। अच्छा, मैंने क्या किया, अब यहाँ पे अगर पहले नीचे आना होगा, मैंने विद पोस्ट जो हायर ऑर्डर कंपोनेंट था उसे मैंने इंपोर्ट कर लिया और मैंने इसको यूं रैप कर दिया। आप लोगों ने मे भी देखा हो यूज राउटर या इस तरह के यूज होते हुए, ठीक है, विद राउटर या इस तरह का कुछ आप लोगों ने मे बी कोड बेसिस में देखा हो, ठीक है। वो बेसिकली हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स ही होते हैं, या इस तरह के कोड बेसिस में विद कन्वेंशन देखी हो, विद कन्वेंशन से जो इस तरह रैप कर रहा हो। सो विद पोस्ट और फिर उसको आपने एक क्या कहते हैं, जो हमारे पास एक्चुअल कंपोनेंट है वो इसमें आपने दे देना है, पास कर देना है। सो वंस यू डू दिस, इट इज गोइंग टू रिटर्न, जब ये एक्सपोर्ट करेगा ना, इट इज गोइंग टू रिटर्न समथिंग। जब ये एक्सपोर्ट करके किसी और में यूज होगा तो इट इज गोइंग टू रिटर्न एन अपडेटेड कंपोनेंट, ठीक है, एक अपडेटेड कंपोनेंट रिटर्न करेगा। और जब वो रिटर्न कर लेगा, ठीक है, तो वो आप यूज कर सकते हो। और वो जो अपडेटेड कंपोनेंट यहां से आएगा, क्योंकि हमने एक फंक्शन के अंदर जो हमारा हायर ऑर्डर कंपोनेंट है उसके अंदर हमने एक कंपोनेंट भेजा, और जब भी ये गाइड कहीं पे यूज होगा, जैसे app.tsx गाइड, तो वो एक अपडेटेड कंपोनेंट होगा जो ये वाला कंपोनेंट है। और इसके अंदर हमारे पास हमने जो फंक्शंस लिखे हुए हैं, वो फंक्शंस ये वाला जो हमारा गाइड कंपोनेंट है वो एक्सेस कर सकता है, क्योंकि अगेन हमारा अपडेटेड कंपोनेंट में हम इसे एज अ प्रॉप्स भेज रहे हैं। अगर हम इसे एज अ प्रॉप्स भेज रहे हैं तो हम इसे यहाँ पे हम डिस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं और फिर हम उसको एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ब्लॉग में भी सेम यही चीज है, गेट आईडी एंड टाइटल, हम इसे यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करें। बाय द वे, इफ वी डोंट नीड दिस, लाइक वी कैन जस्ट रिमूव इट एज वेल। एक सेकेंड, यार, सो वी कैन जस्ट रिमूव इट एज वेल, लेकिन हमें वहां से उसको वहां पे नहीं, सॉरी, हाँ, सो ये दिस इज इट, राइट। हमने बेसिकली देयर वाज अ सिंगल कोड बेस काइंड ऑफ, क्योंकि हमारे पास एक जेसन फाइल थी जिसमें हमारा डेटा था, उसमें हमने कुछ डेटा ऑपरेशंस कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं उस डेटा को, और फिर हमने उसका एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट बना लिया ताकि हमें वो मैनिपुलेशन, डेटा मैनिपुलेशन बार बार ना करनी पड़े। और वो हमने जो हमारे जहाँ पे वो यूज हो रहा है, जहाँ पे वो डेटा यूज हो रहा है, हमने उसको उस कंपोनेंट को रैप कर दिया हायर ऑर्डर कंपोनेंट से, और हमने उसे प्रॉप से निकाल लिया। अब यहाँ पे हमारे पास प्लेटफॉर्म के नाम से एक प्रॉप है और एक ऑथर के नाम से प्रॉप है, ठीक है। इसके अलावा भी, और app.tss में जाऊंगा तो ऑथर सादिफ ऑन द प्लेटफॉर्म 10 Pearls यूनिवर्सिटी है, राइट। ये मैं कैसे एक्सेस कर पा रहा हूँ, इस तरह जो मैंने यहाँ पे बताया था कि जो हमारा अपडेटेड कंपोनेंट है उसके कुछ ना कोई प्रॉप्स होंगे, तो हम उन प्रॉप्स को स्प्रेड कर रहे हैं कि ओके यार, ये प्रॉप्स भी यूज करना, ठीक है, खाली ये वाले नहीं यूज करो। सो इस वजह से हम लोग जब इधर इसे कॉल कर रहे हैं तो हमारे पास हम ये वाले प्रॉप्स यूज कर पा रहे हैं। सो दिस इज यहाँ पे हमारे पास बॉडी टाइटल आ गया और यहाँ पे हमारे पास आईडी और टाइटल आ गया। सो दिस इज an example of higher order components. I think this is it because we are like 9 minutes up. There was one other thing, custom hooks, but I think these ये वाले topics, I don't know my audience here. Can we change the UI in higher order component? Yeah, higher order components are mainly for functionality, code reusability, code जो आपके functions होते हैं, ठीक है। अगर आपने UI चेंज करना है तो you can do it in, आप उसमें आप उसका एक सेपरेट कंपोनेंट बना लो, रीयूजेबल कंपोनेंट, और फिर आप उसे कॉल कर लो रीयूजेबल कंपोनेंट को, ठीक है। सो बेसिकली इट इज मोर अबाउट कोड रीयूजेबिलिटी ऑफ फंक्शंस जो आपके पेरेंट में रहते हैं, ठीक है। पेरेंट एज इन के, फॉर एग्जांपल आप जो बात कर रहे हो कि यार ओके, यूआई चेंज करने के लिए, यूआई के लिए यू कैन जस्ट क्रिएट अ रीयूजेबल कंपोनेंट एंड पुट इट इनसाइड द पेरेंट, राइट। सो देयर विल बी अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, बट देयर विल बी सम फंक्शंस जो आपके पेरेंट में होने चाहिए, ठीक है। सो वो फंक्शंस आप कैसे, आप अगर वो आपके चाइल्ड में चले गए
तो वो तो बैड सीन हो जाएगा, फिर आप पेरेंट में कैसे एक्सेस करोगे? तो वो फंक्शंस आपके एक्चुअल में आपके होने चाहिए, आप हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स के थ्रू आप उन्हें एक्ट कर सकते हो. So I think this is it. There is one other thing, but we are like way over the time. Or okay, so yeah, what when to use Redux instead of context API? Yeah, Redux is it's kind of a depends on project. To be very honest, it all depends on project. ठीक है. अब आपकी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी यूज हो रही होगी और रेडिक्स भी यूज हो रही होगी. ठीक है, कुछ ऐसी जगह होगी जहाँ पे सिर्फ रेडिक्स यूज हो रही है, कुछ ऐसी जगह जहाँ पे सिर्फ कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज हो रही है. सो इट डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट फंक्शनैलिटी या प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स. ठीक है यार. लेजी लोडिंग इज अबाउट डायनेमिकली रेंडरिंग द कंपोनेंट्स एट रन टाइम. रन टाइम पे आपका पहले से ये बिल्ड टाइम पे आपका बिल्ड ना क्रिएट हो जाए, जिसमें आपके कंपोनेंट सारे, क्योंकि बिल्ड जब होती है उसमें सारे कंपोनेंट्स होते हैं, इवन द वन दैट आर नॉट रेंडर्ड ऑन द स्क्रीन एट द मोमेंट. ठीक है. सो बिल्ड टाइम पे आपका बेसिकली वो बिल्ड टाइम पे आपके वो कंपोनेंट नहीं बनते, आपकी बिल्ड में नहीं आते, वो आपके रन टाइम पे आते हैं. ठीक है, रन टाइम में आपकी एप्लीकेशन में लोड होते हैं. सो और इफ दे आर हैपनिंग एट रन टाइम देयर माइट बी अ डिले. ठीक है, देयर विल बी अ डिले डिपेंडिंग ऑन मेनी थिंग्स. ठीक है, इंटरनल्स पे भी डिपेंड करती है. सो in that case what you can do is what React has provided us, it has provided us with a suspense component जिससे हम रैप करते हैं लेजी लोडेड कंपोनेंट को. उससे ये होता है कि और उसमें हम फिर एक लोडिंग का कुछ भी बना सकते हैं. ठीक है, वी कैन जस्ट आल्सो रेंडर अनदर कंपोनेंट इन द मीन टाइम. लेजी लोडेड कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, काइंड ऑफ अ लोडिंग स्क्रीन काइंड ऑफ थिंग, वी कैन डू दैट. और जैसे ही वो रेंडर हो जाएगा तो हमारा लेजी लोडेड कंपोनेंट शो हो जाएगा. आई होप दिस clears the concept. Okay. Amna, if you are here, let me know. Because so स्क्रीन से डिसअपियर होगा तो बंडल डॉट जेएस से भी नहीं. बेसिकली हमारा इधर बंडल डॉट जेएस में कंपोनेंट नहीं आता. देखो, अगर वो डिसअपियर हो जाएगा ना तो इट वुड नॉट बी ऑप्टिमम. क्यों? क्योंकि देखो, एक दफा आपकी स्क्रीन पे आ गया है, आपका एक दफा लोड हो गया है ना, अगर वो डिसअपियर हो जाए, ठीक है, तो फिर लाइक व्हाट इज द पर्पस? अगर वो डिसअपियर हो जाता है, फिर वो जब भी दोबारा यूजर से एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो फिर दोबारा एक लोडिंग स्क्रीन आएगी, दोबारा उसे वेट करना पड़ेगा. मेरी बात समझ आ रही है? सो व्हाट हैपेंस इज कि यार वो पहली दफा में अब वो एक सेपरेट फाइल जनरेट हो जाती है और वो उधर ही रहती है. वो बार बार बैंडविड्थ या बार बार वो कंज्यूम नहीं कर रहा होता यूजर का, यूजर के जो भी है कनेक्शन, वो बार बार नहीं कुछ कर रहा होता. वो एक दफा फाइल जनरेट होगी, इट इज गोइंग टू बी देयर, ताकि वो उसे फौरन एक्सेस कर सके. आई होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन. Amna, if you are here, you can just take it away. By the way, if you want to reach out to me, if this is my handler everywhere on GitHub, Twitter, and LinkedIn. Everywhere I use the same handler, so you can just reach out to me if you have any questions. I skipped custom hooks, so but I think overall baki topics clear hain. I hope clear hai. Because the whole point of this whole session was, it was not about like I can just explain it to you, but it won't make sense if you don't see it in real time. So seeing it in real time is really what I wanted to do in this whole session. So I think it took some time. Okay, एक second. असद महमूद, आपका हाथ खड़ा है. Do you have any question? अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है, you are more than welcome to ask right now. किसी और का कोई क्वेश्चन? Okay, so I think we can just wrap it up. I thank you for having me. Over to you, Amna. Thank you, Saad. Thank you so much for such a nice session. And we are so glad that you joined us and you just gave us your time.
I would also like to thank our dear audience for joining us today. So yeah, that's all for this session. If you guys still have any questions, so you can just ask, or you can actually reach out Saad personally on his socials like LinkedIn or maybe Twitter, etc. So yeah. Okay, so now wrapping it up. So thank you so much for joining. Thank you, everyone. So see you the next time. Bye.